Yes, sir. Okay. So let's open that folder so that we can directly have a file into this 10 May morning folder. Okay. तो मैंने डायरेक्टली इस फोल्डर को ही VS कोड में ओपन कर लिया है सो दैट मैं डायरेक्टली यहीं पे फाइल्स को क्रिएट कर पाऊँ. ओके. तो देखो जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हो पहले तो वो फाइल आपके पास होनी चाहिए, राइट. तो लेट मी क्रिएट अ फाइल दैट आई वांट टू रीड. वैसे आप किसी भी टाइप की फाइल को रीड कर सकते हो, वेदर इट इज योर इमेज फाइल और द टेक्स्ट फाइल or even your HTML file, whatever file you can have. Okay, but this time let me go with the TXT file only. So I'm just creating a file, for example my file.txt, and I will place a few content inside this txt file. For example, this is a dummy file. Okay, so I have placed this kind of content in my txt file. Now what I want to do is I want to read this myfile.txt in this fs.demo.js, right? So what we have to do, this fs module is having a function that is read file. Okay, तो इस fs मॉड्यूल के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है read file. Okay, सो रीड फाइल के अंदर व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डू वी नीड टू पास, क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें यहाँ पे पास करने हैं. देखो, first you have to pass the name of file which you want to read, or we can say name or the path of that file. Okay, so that html, sorry, that txt file is present into the same location. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल का नेम पास कर सकते हो, फॉर एग्जांपल माई फाइल डॉट txt. Okay, and the second argument will be the callback function. Okay, क्योंकि ये फाइल को रीड करके उसका कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा. ओके, इंस्टेड व्हाट इट विल डू, एक कॉल बैक फंक्शन आपको पास करना है. ओके, और फाइल का कंटेंट रीड हो जाने के बाद इट विल असाइन दैट कंटेंट as the argument of this callback function. Okay, so you will get two arguments in this callback function. First argument will be for error and the second argument will be for the data. If there is some error in reading the file, then this error variable will be populated, this argument will be populated, and if there is no such error in reading the file, then the content of file will be assigned in the second argument. Okay, so in the most cases आप Node.js में ये ऑब्जर्व करोगे कि जो callback function पास होगा either for reading a file or writing the file, तो या फिर और भी किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए, सो जनरली जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा कॉल बैक का वो एरर के लिए रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो आपके डेटा को कंटेन करेगा. ठीक है, तो फाइल का कंटेंट रीड होगा एंड अगर कोई एरर नहीं है सो इट विल असाइन दैट एंटायर कंटेंट इनटू द डेटा आर्ग्यूमेंट. So now we can put a condition like if there is an error. Okay, so we can log this error like console.log. अभी देखो मैंने कोई सर्वर क्रिएट नहीं की है, so we are not going to send a request from a client and get a response from our server. Okay, we will directly run this file onto node.js and at the same moment we will get the result. Okay, if you want you can create a server also. Okay, आप सर्वर बना के सर्वर से रिस्पॉन्स भी भेज सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. ओके, बट दिस टाइम आई हैव गॉन विद दिस अप्रोच ओनली. आई एम नॉट क्रिएटिंग अ सर्वर. ओके, so console log error. If there is error, so we are logging error on the console, and if there is no error, then on the we must log this data on the console, right? For example, data. Okay, so now let's run this file. तो इसको रन करने के लिए we have to go on to this location on the terminal. So I have opened the terminal into the same location, that is 10 May morning, and let's run this like node
and the name of our JS file is what fsdemo.js. And now you can see we have got this buffer data with us. ठीक है, हमें फाइल का डेटा मिला तो है, बट इन टर्म्स ऑफ दिस बफर डेटा. ठीक है, अब ये बफर डेटा क्या है? एक्चुअली वो स्ट्रीम का डेटा है. आपको पता होगा कि जब भी फाइल में रीड राइट होता है, सो वी आर हैविंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम, राइट? और स्ट्रीम में हमारे बाइट्स ट्रेवल होते हैं इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? तो ये वो एक्चुअल बाइट का डेटा है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस बफर डेटा को, मतलब ये बाइट स्ट्रीम के डेटा को, we need to convert that data into the string. Okay, so let me put a comment over here. The data is by default, the stream object. Okay, so it will carry your file data in terms of string. ठीक है, आपके जो स्ट्रीम के अंदर जो डेटा होगा ये वो कैरी करेगा, राइट? इट विल कैरी योर फाइल डेटा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आपका स्ट्रीम के अंदर जो बाइट्स ट्रेवल हो रहे थे ये वो है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज बाइट्स इनटू अ स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, तो इनको आप स्ट्रिंग वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो? नाउ टू जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग, तो आपको सिंपली क्या करना है, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग मेथड आपको कॉल करना है. ओके, तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसी बाइट के डेटा को वो अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा. सो नाउ लेट्स लॉग दिस ऑन द कंसोल, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, and now again let's run this JS file. So you can see this time when we have converted that data into the string value, we have got its content. Like this is dummy file. So above is the byte representation of this string data. Okay. And the following is the actual string data that we have got from our txt file. Okay. So is this thing clear? Yes. Okay. So let me write this program. Okay. So this is how we are going to read the content of a file. Now let's see how we are going to write something into an existing file, right? So let's say this is our file, myfile.txt, and I want to write something into this file. Okay, तो इस फाइल में राइट करने के लिए we are getting again a function that is write file. ठीक है, तो फाइल को रीड करने के लिए आपको फंक्शन मिलेगा यहाँ पे रीड फाइल, एंड फाइल में राइट करने के लिए you will be getting a function write file. So again, in this write file function, you have to pass a few arguments. Okay, तो कौन सा argument यहाँ पे pass करेंगे? First, the name of file in which you have to write. So name of file is myfile.txt. Okay, and as the second argument, you have to pass the content. Okay, तो आपको क्या content यहाँ पे place करना है, वो content यहाँ पे आप mention करोगे. Like I want to write a content like node.js file write demo. Okay, so ये function क्या करेगा? It will write this content node.js file write demo into this myfile.txt. ठीक है, ये इस second argument वाले content को ये जो फाइल का नेम आपने मेंशन किया उसमें राइट करेगा, and as soon as your write operation has been successfully executed, so at the next moment what it will do, एक callback function पास करोगे. ठीक है, वो callback function execute करेगा. Okay, and if देर इज एनी फेलियर, अगर कुछ भी एरर यहाँ पे अकर होता है इन राइटिंग द फाइल, सो यू विल गेट दैट एरर इन द आर्ग्यूमेंट. ठीक है,
or if there is some error, then we can definitely log that error on the console, right? For example, if there is an error, so let's log this error on the console, like console.log error. And if there is no error, then yes, we can definitely log something else like write operation was successful. Data saved into file, or it depends on your use. Data saved into file. Okay, so this is just a simple function. ठीक है, simple है, कुछ भी नहीं करना है. Write file के अंदर first argument pass करना है name of the file and content of the file, and third will be a callback function. Okay, so whenever your file has been completely written either with error or there is the success, so this callback function will be called. Okay, and if there is some error, so it will log the error on the console, and if the operation was succeeded, so this else block will be executed and it will print data saved into file. Now let's log this data. Now let's run this file node fsdemo.js. So we are getting the result as data saved into file. Now it's time to open this file, and you can see the content has been overridden and we are having this content node.js file right demo. Okay. This is again a simple use case. Let me put this code also for writing the file. राइट, तो इस फंक्शन ने जो कि था हमारा राइट फाइल, इसने क्या किया, पुराने कंटेंट को ओवरराइट किया विद द न्यू कंटेंट. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी रिक्वायरमेंट कि समटाइम्स वी हैव टू परसिस्ट द ओल्डर डेटा, एंड अलोंग विद दैट ओल्डर डेटा वी वांट टू अपेंड आवर न्यू डेटा, राइट. तो जो पुराना डेटा रखा हुआ है वो एज इट इज रहने दो, और उसके साथ नया डेटा लॉग करना है और नया डेटा राइट करना है. सो उसके लिए भी वी आर गेटिंग अ फंक्शन. तो फंक्शन कौन सा है, वो राइट फाइल की जगह यू शुड कॉल अपेंड फाइल फंक्शन. ठीक है, तो राइट फाइल और अपेंड फाइल में यही डिफरेंस है कि राइट फाइल पुराने कंटेंट को ओवरराइट करके इट विल प्लेस ऑलवेज अ न्यू कंटेंट. ठीक है, वो हमेशा न्यू कंटेंट ही फाइल में रखेगा. एंड अपेंड फाइल विल डू व्हाट, this append file will persist the older data, and along with that it will write the new data. So you can see the older data is node.js file write demo, and along with this we can pass the new data. Let's say this is another line to be appended. Okay, just a dummy content that I have placed here. Okay, so now let's run this application and let's see what will be the change into our file. So again, we got a confirmation message, कि data saved into file. Now just open this file and you can see Node.js file write demo was there earlier. And along with this, we have concatenated or we have appended the new data. Okay. So is this thing clear? Both functions write and append. सर इसमें एस्केप फंक्शन होते हैं, क्या? एस्केप की जो थी सर, जो हाँ, नेक्स्ट लाइन की तरह आ जाए अपने आप वैसा. एस्केप की नहीं होता, वो स्लैश इन आपको अपेंड करना पड़ेगा. ओके अगर आप चाहते हो न्यू लाइन में कंटेंट आ जाए तो वो स्लैश इन का यूज होगा. ओके, ओके ओके. So FS सिंक्रोनस है और सिंक्रोनस फंक्शन है. ये है आपका एसिंक्रोनस, क्योंकि इसमें क्या जा रहा है, कॉल बैक फंक्शन पास हो रहा है, राइट. देखो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका एसिंक है या सिंक्रोनस है. देखो कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लगाया, तो राइट ऑपरेशन स्टार्टेड. ठीक है, एंड एक लास्ट में कंसोल लॉग लगाते हैं, कंसोल लॉग एक राइट ऑपरेशन एंडेड. ठीक है, अब इसको रन करते हैं.
देखो रिजल्ट क्या आया, राइट ऑपरेशन स्टार्टेड जो पहले आना चाहिए था, एंड देन एट द सेकेंड मोमेंट राइट ऑपरेशन एंडेड आ गया, क्योंकि उसको पता है कि फाइल को राइट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक वो सेपरेट प्रोसेस उसने इंटरनली क्रिएट किया, एंड दिस हैज मूव्ड ऑन इनटू दिस डेटा सेव्ड इनटू फाइल। ठीक है, तो अभी जितने भी फंक्शंस हमने देखे थे सारे के सारे कैसे हैं, ये एसिंक्रोनस है, राइट। लेट मी पुट अ पॉइंट हियर, a read file, write file, append file। ओके, ये सारे फंक्शंस हैं आर एसिंक्रोनस। ओके, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि फाइल में डेटा राइट करने के लिए वी आर गेटिंग टू अप्रोचेस, राइट। एक आपको अप्रोच मिलने वाली है एसिंक्रोनस, और एक अप्रोच मिलने वाली है सिंक्रोनस वन। तो ये जो तीन फंक्शंस है हमारे, दीज आर द फॉर एसिंक्रोनस अप्रोच। ओके, एंड बट इफ यू वांट टू गो विद द सिंक्रोनस अप्रोच, तो सिंक्रोनस अप्रोच के लिए भी यू आर गेटिंग फ्यू प्री डिफाइंड फंक्शंस, राइट। और वो फंक्शन कौन से हैं? रीड करने के लिए यू आर गेटिंग अ फंक्शन रीड सिंक, रीड फाइल सिंक, एंड राइट करने के लिए यू आर गेटिंग अ फंक्शन रीड फाइल, सॉरी राइट फाइल सिंक, देन अपेंड करने के लिए अपेंड फाइल सिंक। इस टाइप का फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? देखो, अगर ये फंक्शन आपके asynchronous है, so you are passing one callback function as the argument। ठीक है, तो इन सभी फंक्शन में callback function argument में यहाँ पे पास हो रहा था, और वो callback function at some later point of time execute होता रहेगा। ठीक है, meanwhile other statements यहाँ पे ब्लॉक नहीं होंगे। तो दिस इज योर asynchronous nature, राइट। तो और भी कुछ यहाँ पे मेथड्स देखते हैं, देन उसके बाद वी विल सी कि सिंक्रोनस अप्रोच पे हमें कैसे कंटिन्यू करना है। ओके, देखो, sometimes we are having a requirement that we don't need to write something into the file। Okay, we are not supposed to perform any write operation, but we should only generate a file, right। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि वी आर सपोज टू ओनली क्रिएट अ फाइल, दैट्स इट। सो हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल? अभी तो हमने क्या किया था, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट। सपोज करो, if I'm writing a file name that is not existing currently, for example, demo.txt। Okay, so in my current folder I'm not having a file with this name demo.txt, right? So now let's try to run this. Instead of append file, let me write write file। Okay, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट फाइल को कॉल किया, और अब demo.txt एग्जिस्टिंग नहीं है हमारे पास में, एंड वी आर ट्राइंग टू राइटिंग समथिंग इनटू इट। नाउ व्हाट विल हैपन? क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? एरर। विल इट जनरेट अ फाइल? यस, एरर। एरर। एरर आएगा लेट्स सी क्या रिजल्ट आया। डेटा सेव्ड इनटू फाइल, मतलब डायरेक्टरी में देखोगे तो फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, ये फाइल बना के भी देगा, बट समटाइम्स इट इज रिक्वायरमेंट कि हमें सिर्फ फाइल को हमें जनरेट ही करना है, राइट। हमें फाइल के अंदर कुछ डेटा राइट करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस आप क्या करोगे, एक और फंक्शन आपको मिलेगा, दैट इज द ओपन फंक्शन। ओके, सो एक फंक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है ओपन। सो ये जो राइट फाइल है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, फाइल को जनरेट कर रहा है, साथ में डेटा राइट भी कर रहा है। लेकिन बट आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट, वी ओनली नीड टू क्रिएट अ फाइल, दैट्स इट। वी डोंट वांट टू राइट समथिंग इनटू दैट फाइल। सो इन दैट केस यू विल मेक यूज ऑफ द ओपन फंक्शन। ठीक है, तो ओपन फंक्शन को कैसे कॉल करना है, क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। So let's call that open function. Let me see if I have mentioned this code. हाँ,
Okay, so fs.open and fs.open will take two arguments. The first argument will be for the file name. Let's say data.txt, and the second argument will be the mode in which you are opening the file. Are you opening the file for writing something or for reading something? So if you want to create this file, if you want this file to be generated, so compulsorily you should pass a mode as w. ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर है आपने सी प्रोग्रामिंग में या सी प्लस प्लस में जब आप फाइल को ओपन करते हो, राइट, you used to call that f open function and you used to specify the file opening mode, is it r or is it w or is it a, right? So you are supposed to mention that same thing. तो अगर आपको ये चाहिए कि आप फाइल को इनिशियली सिर्फ जनरेट करवाना चाह रहे हो, so you should pass the file opening mode as w. Okay, and if that file has been successfully generated, so this callback function will be called. Okay, and again you will get two arguments. The first will be for error and second will be for this newly created file. Okay, and again you can check if there is some error. Okay, so we can log error on the console. So console.log error, and if there is no such error, so in the else block what we can do is we can just simply log one message like file created, and you can also log this file object that we have, the console.log and file. Let's see what content it will give for this file object, right? So now let's run this node fsdemo.js. So you can see it has generated this data.txt and it has given a integer result that is 3. Now what this integer result is suggesting to us? Yes, ये 3 क्या चीज होनी चाहिए? क्या है 3? ये फाइल तो क्रिएट हो गई है, 3 क्या है? एग्जिट कोड सक्सेसफुल के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू. Yes, any more answers? ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? देखो इस डेटा को, ये जो हमें 3 मिला है, इसको जनरली कहते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर. सो दिस फाइल value will be a non-negative integer. Okay, this file value will be a non-negative integer. और इसका यहाँ पे पर्पस क्या है और ये क्या काम करके देगा? सो बेसिकली इसको कहा जाता है दिस integer is a file descriptor. ओके, इसको हम लोग यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्टर कहेंगे. और इसका यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? अ फाइल डिस्क्रिप्टर इज बेसिकली अ हैंडल यूज टू एक्सेस अ फाइल. अगर उस फाइल को आप एक्सेस करना चाहते हो, so you can access that file with the help of this file descriptor. Okay, so this, इसकी वैल्यू भले ही इंटीजर है लेकिन है वो ऑब्जेक्ट, उसको हम फाइल डिस्क्रिप्टर कहेंगे. ओके, and you can use that file object to perform any operation onto this file. Okay, so this integer is a file descriptor and used to handle uh, used to handle फाइल, और यूज टू हैंडल अ फाइल बोल सकते हो, या फिर उस फाइल को एक्सेस अगर आपको करना है तो हम इसी फाइल डिस्क्रिप्टर की हेल्प से उस फाइल को आगे फर्दर एक्सेस करेंगे. ठीक है, बट इन रियल टाइम केसेस ऐसा बहुत रेयरली होगा कि हम इसी फाइल डिस्क्रिप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वी विल क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन कॉल अगर उसमें डेटा हमें राइट करना है तो.
राइट, क्योंकि जो ओपन फंक्शन है इट विल जस्ट ओनली जनरेट अ फाइल फॉर यू, और फिर जब हमें फाइल को राइट करना होगा, सो अगेन वी आर हैविंग अ बेटर अप्रोच। ठीक है, तो जब देखो दो अप्रोचेस हैं। The first approach is if you want to generate a file, and at the same time if you want to write something into that, so write file is the option for us. Okay, or that is the most simple task, right? उससे बहुत easily आपका operation perform हो जाएगा। बट इफ यू आर इन अ रिक्वायरमेंट कि सिर्फ फाइल को हमें जनरेट ही करना है, तो राइट फाइल को कॉल ना करके वी शुड कॉल दिस ओपन फंक्शन। देन फिर हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वी शुड राइट समथिंग इनटू दिस फाइल, तो हमें इस फाइल डिस्क्रिप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इससे चीजें और ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। तो अगर फाइल में राइट ही करना है, सो गो विद राइट फाइल, यू विल हैव वन मोर इजियर अप्रोच फॉर दैट। ओके, so now let's explore few more functions. Let me copy this code. All right, चलो बाकी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू फ्यू मोर फंक्शंस कि हम अपने फाइल को कैसे डिलीट करवा सकते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू रिमूव एनी फाइल, so for that purpose you are getting one function that is unlink. Okay, so this unlink function will try to delete your file. So we have to pass the first argument as the name of the file, right? Like which file you want to delete. For example, I would like to delete data.txt. Okay, and the second argument will be your callback function. So if file has been deleted, then this function will be called and it will take a single argument for error. Okay. Now again, you can check if there is some error. If there is some error, then you can log that error on the console. Okay. So let's log this error on the console. And if everything is okay, then you can just simply log a confirmation message. Yes, file has been deleted. Like file deleted. Okay. Now let's run this program on the Node.js. तो अब देखोगे कि लेफ्ट साइड पे इधर folder structure में we are having data.txt, and now let's run this file. So file deleted, and you can see practically also file got deleted. Okay, so this is the way in which you can delete a file. अगर डिलीट करने में कुछ एरर होता तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट कर देता। इजी है, कुछ भी यहाँ पे फैंसी नहीं है, बस फंक्शन आपको कॉल ही करना है, दैट्स इट। ओके, सर अगर फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल नहीं भी तो एरर देगा ना? हाँ बिल्कुल एरर ही देगा फाइल नॉट फाउंड करके। चलो अब नेक्स्ट ऑपरेशन है कि वी कैन रीनेम अ फाइल। ठीक है, तो आप चाहो तो एग्जिस्टिंग फाइल को आप रीनेम भी कर सकते हो। सो फाइल को रीनेम कैसे किया जाए? So again, for renaming a file, we are getting a function that is rename. ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं, राइट? सो कौन से दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास होंगे? एक तो ओल्डर नेम एंड एक न्यू नेम आपको पास करना है। ओके, तो न्यू नेम, लेट्स से ओल्ड नेम मैं यहाँ पे पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल demo.txt। आई नीड टू चेक द सीक्वेंस कि पहले ओल्ड पास होगा या पहले न्यू पास होगा। एक काम करते हैं, इसके डॉक में देखते हैं। सर ओल्ड ही पास होगा पहले। बट लेट्स कंफर्म इट। fs.rename, old then फिर new and then a callback. Okay, so old name was demo.txt, and let's say consider new name as new demo.txt. Okay, and you will have
one callback function as the argument. So again, this callback function will have an error object. Okay, and let's compare this error object in that same way. If there is some error in renaming this file, then console log this error, or you can also throw this error if you want. Okay, and if everything went well, then yes, you can log a confirmation like file renamed. Okay, so this is your file name demo.txt. We are renaming it to new demo.txt. Now let's run this code node fs demo. So you can see our file has been renamed to new demo.txt. Okay, कुछ भी fancy stuff नहीं है, बस function call करना है and you will get the result. Right, nothing complex in this. Okay, now what we have seen कि ये जितने भी functions हैं इनके argument में we are passing one callback function. So this is the proof कि ये सारे operations कैसे थे asynchronous, right? Now if you want to perform these all the operations synchronously, then you are getting a synchronous equivalent for each function, right? For example, let me write one synchronous approach. So if you want to read a file synchronously, then your function will be read file sync. Okay. And if you want to write into a file synchronously, then it must be read file sync. Okay. तो आपको अब यहाँ पे कोई भी callback function नहीं मिलेगा. ठीक है. लाइक हम रीड के अंदर एक कॉल बैक पास कर रहे थे, राइट के अंदर एक कॉल बैक पास कर रहे थे, तो वो अभी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला. ठीक है, आप डायरेक्टली अब इन फंक्शंस को कॉल करोगे एंड अगर फाइल को रीड कर रहे हो, सो यू विल गेट दैट कंटेंट एज अ रिटर्न वैल्यू इंस्टेड ऑफ अ कॉल बैक. आपको कंटेंट एज अ रिटर्न वैल्यू मिलेगा. लेट्स हैव एन एग्जांपल. तो ये फाइल है हमारी न्यू demo.txt. लेट्स ट्राई टू रीड दैट सेम फाइल. So fs dot read file sync. Okay, तो read file sync को यहाँ पे कॉल किया and इसके अंदर we have to pass name of the file, right? So let me pass name of the file as new demo.txt, and instead of having a callback, and that callback will have the data. So what it will do, it will return the value. Okay, whatever be the content of that file will be returned by this read file sync. And let's assign into a reference, for example, data is equal to this, and let's log this data on the console. So console.log data. So again, you can see we have this buffer data with us, the data that is present in the stream in the form of bytes. So we have to convert these bytes into the string. So we have to call a toString method. Okay, so just call toString method and it will convert your byte data into the string data, bytes into the characters. We are just performing that operation. Okay, so you can see this is another line to be appended that we have written inside this file. Okay, so this is the synchronous approach. So how it will work asynchronously? Suppose if I'm having one console log statement, just to show you a proof. ये console log मैंने लगाया like before reading file, and let's put one more console log like after reading file. तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में यू हैव रिटर्न द स्टेटमेंट, वही सीक्वेंस में चीजें एग्जीक्यूट होंगी. सो लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पे लास्ट वाला कंसोल पहले चल गया था बिकॉज दिस रीड ऑपरेशन विल टेक सम टाइम. तो उसके लिए सेपरेट प्रोसेस मीनवाइल क्रिएट हो चुका था, साइमल्टेनियसली वो एग्जीक्यूट हो रहा था. बट दिस टाइम दिस विल नॉट द केस. यहाँ पे जब तक फाइल आपकी रीड नहीं हो जाती, इट विल नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अब भले ही फाइल को रीड होने में कितना भी टाइम लगे, राइट, सो इट विल नॉट execute the next statement.
तो यू कैन सी स्टेटमेंट क्या आया, बिफोर रीडिंग द फाइल एंड ये फाइल का कंटेंट आया, देन ओनली वी हैव दिस लास्ट स्टेटमेंट. सो दिस अप्रोच इज सिंक्रोनस, द ब्लॉकिंग नेचर. नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सी अप्रोच पे जाना चाहते हो. Like if you want to go with the synchronous one or the asynchronous one. Is it clear to all of you? Yes. Okay. Sorry. So similar to this, you are having append file sync also, then unlink sync also, rename sync also. Okay. तो बहुत सारे functions यहाँ पे आपको synchronous way के लिए मिल जाएंगे. You just only need to call that function, right? So this was our FS module. Okay, so using this FS module, we can just simply perform any operations on the file. Okay. So now, हाँ, एसिंक्रोनस में कॉल बैक में एरर पास कर रहे थे तो वैसे एरर हैंडल हो रहा था तो हाँ, सिंक्रोनस में कैसे करेंगे try catch. ओके क्योंकि एरर आएगा तो वो ट्राई के अंदर एरर आएगा और उसको हैंडल करेगा कैच ब्लॉक. ओके Okay, so now this time we have to explore few more things about Node.js. और भी कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे. So we have seen कि modules के बारे में कि we are having two types of modules, right? One is the built-in module and another is the user-defined modules. But we are having few more classification for the modules, types of modules. Okay, so एक module है जिसे we are going to refer it as the local module and another is your global module. Local and the global module. ठीक है. अब देखो जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स थे उनका लोकल और ग्लोबल से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज वो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि Node.js को जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे दे गॉट इंस्टॉल्ड इनटू आवर सिस्टम. ओके, तो वो उनको हम लोकल या ग्लोबल में क्लासिफाई नहीं कर सकते. ना ही हमारे यूजर डिफाइंड जो मॉड्यूल्स हैं हम उनको लोकल या ग्लोबल में यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे. तो ये जो लोकल एंड ग्लोबल मॉड्यूल्स है हम किस टाइप के मॉड्यूल्स के लिए रेफर करने वाले हैं. अगर आप मेजरली देखोगे ना तो तीन टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं that we have discussed. Let me write a point for this, like types of modules. देखो एक ऐसा मॉड्यूल था जो कि रहने वाला है what built in module. So this is the official modules which we are getting when Node.js is being installed, right? वो official modules है, right? And another is the user defined modules कि जो मॉड्यूल डेवलपर खुद अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स यूज. सो यहाँ पे उसको यूजर डिफाइन कहेंगे. लेकिन कुछ ऐसे भी मॉड्यूल होते हैं जो ना ही बिल्ट इन है ना ही यूजर डिफाइंड है. बिल्ट इन मतलब क्या, जो ऑफिशियली Node.js पीपल हैज डेवलप्ड उनको बिल्ट इन बोल रहे हैं, राइट? सो वी आर हैविंग सर्टेन मॉड्यूल्स जो ना ही Node.js के ऑफिशियल डेवलपर्स ने बनाए, राइट? जो ना ही हम डेवलपर्स ने बनाए. ओके, मतलब जो प्रोजेक्ट का डेवलपर है ना ही उसने बनाया ना ही Node.js ने ऑफिशियली आपको दिए. कुछ और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने वो मॉड्यूल हमें प्रोवाइड किए हैं, राइट? सो वी यूज टू रेफर दोज मॉड्यूल्स एज व्हाट, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स. ओके, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हम इनको कहेंगे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स. ठीक है, तो बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफिशियली गिवन बाय Node.js. यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हम खुद अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे. लेकिन वी आर हैविंग सर्टेन मॉड्यूल कि किसी थर्ड कंपनी ने या थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बना के दिया है, राइट? सो दैट इज द थर्ड पार्टी मॉड्यूल. सो ये जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है we are not having these modules installed in our system, right? आपके Node.js को क्या पता कि आप कौन सा थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज करने जा रहे हो.
तो उसने तो केवल बिल्ट इन मॉड्यूल को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके दे दिया, राइट? नाउ व्हाट अबाउट दीज थर्ड पार्टी मॉड्यूल, लाइक जैसे एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस जो लाइब्रेरी है, उसके लिए जो मॉड्यूल आपको मिलेगा वो कोई बिल्ट इन मॉड्यूल थोड़े ना है, राइट? वो नोड जेएस का कोई ऑफिशियल मॉड्यूल नहीं है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट ऑल्सो, रिएक्ट कौन से यहाँ पे नोड जेएस वालों ने बनाया, राइट? सो दीज ऑल आर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, राइट? जैसे एंगुलर है, एंगुलर कौन सा वो ऑफिशियल है नोड जेएस का, राइट? वो भी अलग से किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, राइट? सो उन मॉड्यूल्स को वी हैव टू इंस्टॉल देम मैन्युअली, राइट? क्योंकि वो अपने आप नोड जेएस के टाइम पे जब आप इंस्टॉल करोगे, दे विल नॉट गेट इंस्टॉल्ड एट द सेम टाइम। सो इट्स द डेवलपर हु विल इंस्टॉल देम। ओके, सो ये मॉड्यूल कौन से है? लाइक नाइदर गिवन बाय Node.js ऑफिशियली, ये Node.js के ऑफिशियल मॉड्यूल्स नहीं है, एंड नॉर क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट डेवलपर, ना ही प्रोजेक्ट के डेवलपर ने बनाया और ना ही Node.js ने ऑफिशियली दिया है। ओके, सो दीज मॉड्यूल्स आर प्रोवाइडेड बाय और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट, कि जो कि नाइदर नोड जेएस है ना ही हम है, तो हम दोनों के अलावा एक थर्ड पार्टी कोई ऑर्गेनाइजेशन है that has provided this module. Okay, so we need to install them manually. So we need to install them manually, and trust me कि जब भी आप कोई रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाओगे ना, सो यू विल नीड लॉट्स ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की हमें जरूरत पड़ती है टू ईज आउट आवर ऑपरेशंस। ओके, बहुत से ऐसे यूजफुल थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जो कि आपका डेवलपमेंट को और ज्यादा आसान कर देंगे। लाइक एक्सप्रेस इज वन ऑफ द थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ओके, एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं जो कि हम विद टाइम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सो द मेन पॉइंट इज कि वी नीड टू इंस्टॉल देम मैन्युअली, राइट? तो हमें उनको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये काम कैसे होगा? तो इफ यू वांट टू इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी मॉड्यूल इनटू योर सिस्टम, then we are having one component of this Node.js, that is npm, Node Package Manager. Okay, so to install, or you can say if you have installed any third party module and you no longer need it, so you can also uninstall it. So if you want to install or uninstall the third party module, then there is a component of Node.js and that is npm। ठीक है, तो Node.js का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा जिसे वी आर गोइंग टू रेफर एज व्हाट, npm। ठीक है, हम उसे npm कहते हैं। सो npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि एक npm एक एप्लीकेशन की तरह ही है। देयर इज अ एप्लीकेशन और कंपोनेंट यू कैन से, ठीक है, जिसे npm कहते हैं, राइट? तो जरा ये बताओ, ये जो नोड था जिसे आप रन कर रहे हो, लाइक नोड, एंड यू आर गिविंग अ फाइल नेम टू इट, डेमो डॉट जेएस फाइल को रन करो। तो ये हमने क्या देखा था, नोड इज अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके जेएस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दिस नोड इज? ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? क्या वी कैन कॉल इट एज जीयूआई एप्लीकेशन? No. क्या ये जीयूआई है? CLI. Yes, it is CLI. GUI means what? Graphical User Interface, right? तो GUI ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें यूजर इंटरफेस आपको सामने दिख रहा है, राइट? कुछ बटन्स दिख रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड्स आपको दिख रहे हैं, मेन्यू ऑप्शंस वहां पे दिख रहे हैं। जैसे ये VS कोड है, ये GUI है, राइट? ये नोटपैड आपका GUI सॉफ्टवेयर है, राइट? एंड अगेन फॉर एग्जांपल ये सेटिंग्स आपका GUI एप्लीकेशन है, राइट? तो GUI मतलब जिसमें ग्राफिकल कंपोनेंट्स दिख रहे हैं इंटरेक्शंस के लिए। बट
we are having one more type of applications running onto our system, that is CLI. CLI means what? Command line interface. सो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब क्या? वहां पे कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट नहीं होगा, कोई बटन्स, कोई मेन्यू ऑप्शंस, लाइक कोई भी बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सारे काम करने के लिए यू हैव टू राइट सर्टेन कमांड्स। कोई भी अगर काम आपको करना है तो कमांड लिखना पड़ेगा। जरा ये बताओ, हैव यू गाइस यूज्ड माई एसक्यूएल? Yes. Yes, sir. Yes. तो माई एसक्यूएल क्या था? वो CLI है या वो GUI है? CLI. CLI CLI है। Just to perform each and every operation, we are writing certain commands, right? हम SQL के commands लिख रहे थे। Like अगर आपको database बनाना है, if you want to open a database, or if you want to create a table, if you want to store data into it, if you want to delete data, update data, fetch data, so for each of the operation, you are writing certain command. Okay, तो एक black and white screen open होती है, right? वहां पे आप कुछ command लिखते हो and you are getting result, राइट? तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम CLI बोलते हैं। तो नोड इज ऑल्सो अ CLI एप्लीकेशन, ये कोई GUI नहीं है, राइट? एंड जस्ट टू इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी मॉड्यूल, एक और CLI आपको मिल रहा है Node.js के साथ, दैट इज npm. सो npm इज बेसिकली अ CLI. तो ऐसा मत समझना कि npm कोई प्ले स्टोर जैसा कुछ एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसको आप ओपन करोगे तो वहां पे आप सर्च करोगे देन एक इंस्टॉल बटन मिलेगा, ऐसा नहीं है, राइट? सो npm इज जस्ट अ CLI एप्लीकेशन, राइट? लेट मी राइट, npm इज अ CLI, ओके? सो आपको npm को भी रन करने के लिए CLI कुछ कमांड लिखना पड़ेगा टू इंस्टॉल और टू अनइंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, npm is a CLI and we need to write command to install or uninstall any module। और ये बात सिर्फ किसके लिए चल रही है? फॉर थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, राइट? क्योंकि जो ऑफिशियल मॉड्यूल्स हैं वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, राइट? आपको उन्हें अलग से इंस्टॉल करने की या अनइंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। आप ना ही उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो और ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ही समझेंगे कि कैसे हम एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, देन लेटर वी विल सी कि हमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल कौन कौन से टाइप के मिलने वाले हैं, राइट? ओके, सो now let's see how we are going to install or uninstall a third party module, right? So we have to write we have to run or we have to execute this npm, right? तो npm भी अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, you are getting npm with the node.js itself, okay? तो आपके सिस्टम में npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ही। Now if you want to install any third party module तो क्या करोगे? You have to run a command npm install and name of your module name or package name, let's say whatever it may be, okay? So npm install and module name, okay? So it will install a module into your system, okay? So this is the command for installing it, and if you want to uninstall any module, so you need to run a command uninstall then module name, okay? So this will be the way in which we are going to install or uninstall any third party module, okay? Let's say अभी बस एग्जाम्पल के लिए देखना, ये मत सोचना कि हम एक्सप्रेस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? अबे बस ये देखना है कि हम कैसे मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं और मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है, राइट? हमें ये चीज यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एट सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जब हम एक्सप्रेस सीखेंगे तो हमें एक्सप्रेस को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा, राइट? सो हाउ वी कैन इंस्टॉल इट? वी कैन रन अ कमांड npm install express, ओके? तो उस मॉड्यूल का नाम, पैकेज का नाम एक्सप्रेस है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा और ये कमांड चलाओगे आप CLI पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, npm install express, राइट? एंड
if you suppose want to deal with MySQL, okay, आपको क्या करना है, MySQL के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए भी एक आपको मॉड्यूल मिलेगा, तो अगेन npm install MySQL, ठीक है। तो आप ऐसे अपने मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो एक कमांड मैं आपको चला के बताता हूँ कि कैसे वर्क करने वाला है, ओके। तो यू कैन सी मेरे पास ये फोल्डर है 10 मई मॉर्निंग, और अब मैं यहाँ पे ही टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इस पे कमांड चलाते हैं npm install and the name of that module, for example express। तो अब जरा ही बताओ, अगर ये मॉड्यूल है सो यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड JS फाइल्स, यस और नो? Yes, sir. तो इसमें आपको बहुत सारी बनाई JS फाइल्स मिलेंगी, तो वो इसका जो पूरा बंडल होगा, इसमें बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स आपको पहले से जो बनी बनाई मिलने वाली हैं, वो आपको कहाँ पे जाके मिलेंगी, कहाँ पे कंटेन होंगी वो, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अभी यहाँ पे फोल्डर देखो बिल्कुल खाली है, ठीक है, मतलब हमारी खुद की JS फाइल्स है सिर्फ, ठीक है। नाउ लेट्स हिट दिस कमांड npm install express। तो देखना इससे क्या होता है। Let's wait for it to get installed. It is installing। और देखो, जैसे ही हमने किसी मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल किया या किसी पैकेज को हमने इंस्टॉल किया, सो वी आर हैविंग दीज 3 new things into our directory। ये 3 नई चीजें हमारे फोल्डर में आ गई हैं, राइट। One is the node modules folder, another is a file package.json, and another file is this package log.json। तो जब भी आप अपना कोई नोड का एप्लीकेशन बनाओगे एंड वेन एवर यू आर इंस्टॉलिंग एनी ऑफ द थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जब भी किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे, सो यू विल गेट दीज 3 थिंग्स कंपल्सरीली एवरी टाइम, यू विल गेट दिस, ओके। एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, पैकेज जेसन फाइल एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। तो लेट मी राइट अ पॉइंट हियर। Whenever a module will be installed into a project, then we will get 3 things, okay। So what are those 3 things? First, a folder that is node modules folder will be there, and second, you will get a file package.json file, and another is your package log.json file, okay। So first, let's try to explore about this node modules folder। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी मॉड्यूल को आप इंस्टॉल करते हो, सो उस मॉड्यूल के अंदर यू विल बी गेटिंग lots of created folder and lots of created files। तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड या वो पूरा जो मॉड्यूल का बंडल है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इनसाइड दिस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बन जाएगा नोड मॉड्यूल्स का, और इसी फोल्डर के अंदर आपके सारे मॉड्यूल्स स्टोर होंगे, उनके सारी JS फाइल्स या उनके सारे सब फोल्डर्स कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, इस नोड मॉड्यूल फोल्डर में। अब एक चीज यहाँ पे देखो, लेट मी ओपन दिस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर्स। तो यू कैन सी इतने सारे यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बन गए हैं, तो ये सारे अलग अलग सब मॉड्यूल्स हैं दैट यू आर गेटिंग विद एक्सप्रेस। आप देखोगे यहाँ पे फाइल हैंडलर है, एक्सप्रेस एक चीज है, देन यू आर गेटिंग कुकी ऑल्सो, ओके, देन यू आर गेटिंग बॉडी पार्सर। तो ये इतने सारे अलग अलग आपको सब मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो यू कैन सी इनके लिए कुछ आपके पास में JS फाइल्स है, राइट। सो ये मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगे, जितने भी सब फोल्डर्स होंगे, सो दैट एंटायर मॉड्यूल विल बी कंटेन्ड इनसाइड दिस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, ठीक है। आपका जो पूरा मॉड्यूल है दैट विल रिसाइड इनसाइड दिस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। लेट मी राइट अ पॉइंट, all the folder and files related
to the installed module related to the installed module will be stored here. ओके वो आपका यहीं पे स्टोर किया जाएगा. ठीक है. इज दिस थिंग क्लियर अबाउट नोड मॉड्यूल्स? यस. Yes, sir. ठीक है. व्हाट अबाउट अदर्स? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो. So now let's move on to this package.json file. अब देखो बात ये है package.json फाइल जब आप किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे तब तो क्रिएट हो जाएगी. ओके बट अगर कोई मॉड्यूल आपने इंस्टॉल नहीं भी किया है ना, इन दैट केस आल्सो यू मस्ट हैव दिस package.json फाइल. ओके अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं भी है, आपको यूज में नहीं भी आ रहा है, so in that case also you must have this package.json फाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट? और वो क्या फाइल है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट मी राइट वन पॉइंट, लाइक इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव दिस फाइल. ओके भले ही आपके पास पैकेज ऑलरेडी कोई इंस्टॉल्ड है, मतलब कोई आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो, ये बात तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट यू शुड हैव दिस package.json फाइल. तो हमारा एक आइडियल स्टेप क्या होगा, जब भी आप कोई नोड एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट? सो यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट दिस package.json फाइल. ओके आपको ये package.json फाइल को मैन्युअली क्रिएट करना है. ओके एंड वो अलग बात है कि जब आपने इंस्टॉल किया, सो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब मॉड्यूल इंस्टॉल किया तो उस टाइम पे फाइल बन गई है, लेकिन हमने वो काम उल्टा किया. ठीक है. जनरली यही होता है कि जब एक नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, सो फर्स्ट वी विल क्रिएट आवर ओन package.json फाइल. ठीक है. और मॉड्यूल इंस्टॉल होने पे ये फाइल क्यों बनी, उसमें क्या डेटा राइट हुआ, अब इस चीज को यहाँ पे समझते हैं. ठीक है. नाउ यू आर हैविंग दिस package.json फाइल, तो इसका एक्सटेंशन देखो यहाँ पे क्या है, .json. So this simply means what कि इस फाइल के अंदर you will only going to get JSON object. ठीक है. ये प्योर JSON ऑब्जेक्ट को कंटेन करने वाली फाइल है, इसके अंदर आप और कुछ भी कंटेंट नहीं रख सकते. ओनली यू कैन प्लेस अ JSON ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस फाइल. ठीक है. तो हमें इसके अंदर रखना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट अ पॉइंट. वी कैन ओनली contain a JSON object inside a .json फाइल. ठीक है. आपको दिस मीन्स व्हाट कि आपको कुछ की वैल्यू पेयर ही इस फाइल के अंदर कंटेन करके रखना है. और मैं इस फाइल के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वी ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड टू हैव दिस फाइल. बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टोर some metadata related to your project, right? प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी मेटाडेटा होगा, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, वर्जन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ओके and author of the project, right? And what kind of licensing your project is having. So this kind of metadata will be stored inside this package.json file. Okay. So we can only contain a JSON object inside a .json file. This means we can only have a certain key and value pairs. And what kind of data we should have in this package.json file. So this package.json file will contain metadata related to the project. Okay, what kind of metadata we can have for a project? For example, name of the project name is there, and version of the project. हमारा खुद का project का version
लाइक हम वर्जन 1.0 पे काम कर रहे हैं या 1.0.1 पे काम कर रहे हैं, राइट? So on which version of the project currently we are working, so we should mention this, and who is the author of this project and on what date this project has been started, right? So we can mention these parameters: project name, version, author, and if there are certain licensing linked with our current project, right? हो सकता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ लाइसेंसिंग ले रखा हो, right, to use certain different APIs. So we are going to mention those things into this package.json file, right? So if any developer wants to have a overview कि आप ये प्रोजेक्ट को क्यों बना रहे हो, कुछ insights प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए, so every person will look into this package.json file, okay? तो वो सभी कहाँ पे देखेंगे? इस package.json फाइल के अंदर. One more thing that you can add, the description for your project, right? So you can add a description like for what purpose you are creating a project, what your project is doing. So you can add your description, right? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको package.json फाइल के अंदर कंटेन करना है. But along with this, okay, you should always mention the third party modules that you are using in your project. ठीक है? हमने बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को प्रोजेक्ट में इंस्टॉल तो किया होगा, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके बारे में बाकी डेवलपर्स को कैसे पता चलेगा, राइट? सपोज मैंने प्रोजेक्ट में 3-4 मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिए, आपने भी प्रोजेक्ट में 4-5 मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया, तो ये बात पता कैसे चलेगी, राइट? तो क्या आप सबको व्हाट्सएप करोगे या सबको मेल करोगे या कॉल करके बताओगे? नहीं. So we are going to mention all the third party installed modules inside this package.json file. और यही रीजन है कि जब हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इट हैज क्रिएटेड अ फाइल package.json, और फिर उस फाइल के अंदर इट हैज मेंशन्ड द नेम ऑफ मॉड्यूल दैट वी हैव करंटली इंस्टॉल्ड, ओके? बट ऐसा प्रैक्टिकली क्या होगा कि आप package.json को पहले क्रिएट करके रखोगे, उसमें ये सारे पैरामीटर्स मेंशन करोगे, एंड whenever you are going to install any module, तो at that time उसकी एंट्री अपने आप यहाँ पे package.json में हो जाएगी. ठीक है? अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि अभी करंटली इसने क्या डेटा रखा है in this package.json फाइल, तो देखो डिपेंडेंसीज नाम का एक की इसने बनाया, ओके, एंड उसी की के अंदर एक ऑब्जेक्ट असाइन किया, तो जितने भी आपके थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होंगे उन सब की एंट्री जाएगी डिपेंडेंसीज नाम की की में, एंड उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें जाएगा की एज अ मॉड्यूल नेम एंड वर्जन एज इट्स वैल्यू, ओके? अगर मैं सपोज एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ तो डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट के अंदर एक और की वैल्यू बन जाएगा, एंड की होगा उस मॉड्यूल का नाम एंड वर्जन बनेगा उसकी वैल्यू, ओके? सो हर एक इंस्टॉल्ड मॉड्यूल की जो एंट्री होगी दैट हैज टू बी डन इनसाइड दिस package.json फाइल. ठीक है? ये package.json फाइल के अंदर एंट्री हमेशा होना जरूरी है ताकि सभी डेवलपर्स को पता चल जाए लाइक व्हाट modules you are currently using. Okay, so is this thing clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Node.js इंस्टॉल किया हो हमारा प्रोग्राम फाइल्स में जाकर सेव हुआ है, तो इसके लिए हाँ। डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, या फिर जहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा हर बार? अभी वो देखेंगे हम, अभी 2 टाइप के मॉड्यूल आएंगे ना, लोकल एंड ग्लोबल, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजें देख रहे हैं. ओके है? सर. सो व्हाट वी हैव सीन सो फार, एक कंसाइज वे में देखें तो हमने स्टार्ट किया था वी आर गोइंग टू हैव थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, राइट? तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल कौन करेगा? npm, राइट? बट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट व्हाट वी हैव सीन, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले we should have package.json file and we have to mention these few properties, right? Okay, what will be the project name, what will be the version, author, and if there is some licensing or some description.
तो इतनी चीजें मेंशन करके एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना लो, दैट्स इट। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट का बूटस्ट्रैप हो चुका है, मतलब एक स्टार्टिंग फेज में वो आ चुका है। नाउ जब भी कोई मॉड्यूल इंस्टॉल होगा, सो व्हाट वी हैव टू डू, उस मॉड्यूल की एंट्री अपने आप कहाँ पे हो जानी चाहिए, पैकेज डॉट जेसन में। अब एक वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, हम बार बार थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डिपेंडेंसी, राइट। ये एक टेक्निकल टर्म है डिपेंडेंसी, जो आपको ध्यान रखना है। वाई वी आर कॉलिंग इट एज डिपेंडेंसी, क्योंकि अगर मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है एंड आई एम यूजिंग एक्सप्रेस टू बिल्डिंग माय एप्लीकेशन, तो मैं एक्सप्रेस पे डिपेंडेंट हूँ, राइट। सो एक्सप्रेस इज गोइंग टू बिकम द डिपेंडेंसी टू माय एप्लीकेशन। ठीक है, ये टर्म समझ में आ रहा है सबको, डिपेंडेंसी क्या है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सो वी कैन कॉल इट एज डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने एक्सप्रेस की फंक्शंस को कॉल किया होगा, एक्सप्रेस की कुछ क्लासेस मिल रही होंगी, उनको हमने एक्सेस किया होगा, राइट। सो एक्सप्रेस विल बिकम डिपेंडेंसी। तो जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल है उसको डिपेंडेंसी कहेंगे, एंड वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट डिपेंडेंसीज इनटू दिस पैकेज डॉट जेसन फाइल। और ये काम मैन्युअली नहीं करना है। व्हेन वी इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, तो उसका नाम अपने आप यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो व्हेन वी इंस्टॉल एनी डिपेंडेंसी और एनी थर्ड पार्टी मॉड्यूल, तो वो आपके प्रोजेक्ट में स्टोर तो हो जाता है नोड मॉड्यूल्स में, बस उसकी एंट्री डिपेंडेंसीज में अपने आप हो जाती है। सो व्हेन वी इंस्टॉल एनी डिपेंडेंसी और थर्ड पार्टी मॉड्यूल, सो इट्स एंट्री, so its name and version will be stored in package.json automatically। ठीक है, तो वो अपने आप package.json के अंदर उसका नेम और वर्जन को स्टोर कर देगा। अब इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक तो सभी डेवलपर्स को यहाँ पे आइडिया लग जाएगा बाय रीडिंग दिस package.json फाइल कि कौन कौन से डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है। बट दिस इज नॉट द ओनली यूज केस, सिर्फ यही एक अकेला यूज केस यहाँ पे नहीं है, राइट। इसका एक बहुत बड़ा एक और पर्पस है, राइट, जो कि अब अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि वो एक और क्या पर्पस है, कि डिपेंडेंसीज का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर, क्योंकि अगर मेंशन ही करना होता तो हम चाहते तो मेल कर सकते थे, व्हाट्सएप कर सकते थे, फोन कॉल कर सकते थे, या वी कैन क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, सिंपली वी कैन क्रिएट अ वर्ड फाइल। लेकिन व्हाई ओनली इनसाइड दिस पैकेज डॉट जेसन, एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे का, सही समय आने पे बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर कि पैकेज डॉट जेसन फाइल हमें मैन्युअली प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे हमें क्रिएट करना चाहिए। वो फाइल को बनाने का तरीका क्या है। सो वेज टू क्रिएट package.json फाइल। ओके, तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैन्युअली क्रिएट अ फाइल, आप राइट क्लिक करो, न्यू फाइल बनाओ, एक्सटेंशन और डॉट जेसन दो, फाइल को नेम पैकेज दो। ओके, सो मैन्युअली क्रिएट अ फाइल, चेंज एक्सटेंशन वगैरह ये सब है। एंड वी कैन ऑल्सो जनरेट दिस फाइल with the help of npm। okay, the second approach is what, generate this file with help of npm। तो अगर आप मैन्युअली फाइल को क्रिएट कर रहे हो तो आपको उस पूरे फाइल का जो जेसन का स्ट्रक्चर है वो भी मैन्युअली ही क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो मैन्युअली अगर फाइल को क्रिएट करते हो, सो वी नीड टू क्रिएट entire structure, we need to create entire structure for JSON manually। ठीक है, वो पूरे JSON का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमें मैन्युअली ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है,
we need to create entire structure for JSON manually. एक एक की का एक एक की वैल्यू पर आप लोग खुद यहाँ पे डिफाइन करोगे, so it will be a time consuming process. तो जनरली सेकेंड अप्रोच का ही यूज किया जाता है to generate this file with the help of npm. तो जब आप npm की हेल्प से इस फाइल को जनरेट करने जाओगे तो आपसे ये कुछ चीजें इनपुट में लेगा, राइट? ये अगेन एक प्रोग्राम ही चलाएगा, CLI प्रोग्राम. तो इट विल टेक नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एज इनपुट, और ये वर्जन इनपुट में लेगा, ऑथर इनपुट में लेगा, लाइसेंस और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें इनपुट में लेगा, एंड इट विल जनरेट योर package.json फाइल, ओके, विद दोज वैल्यूज. सो जनरेट दिस फाइल विद द हेल्प ऑफ npm. तो वो कौन सी कमांड आपको रन करना है? तो npm init, ठीक है, ये कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे, npm init टू जनरेट योर package.json फाइल, ठीक है. और when you will execute this npm init command, so it will ask for certain inputs, for like these all the parameters will be taken input by this uh, specific program, and whatever be the values given by you, so this will so this npm init will store those values into package.json file, ठीक है. तो ये इसका प्रोसेस रहेगा कि जब भी आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले, आप सबसे पहले ये npm init कमांड चलाओगे, so that we can have package.json file, we can mention certain metadata into it, or at some later point of time when you are going to install the dependencies, तो dependencies नाम का ऑब्जेक्ट और उसकी की वैल्यू पर वो अपने आप स्टोर कर देगा, आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर मैं क्रिएट करता हूं, एक फोल्डर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टू क्रिएट आवर प्रोजेक्ट, एंड आई एम नेमिंग माय प्रोजेक्ट एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट नोड ऐप, ठीक है. ये मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट है, सपोज मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फर्स्ट नोड ऐप. तो कुछ भी JS फाइल या कुछ भी बनाने से पहले व्हाट वी विल डू, हम लोग एक इसमें पैकेज जेसन फाइल को क्रिएट करवाएंगे, ओके. सो ओपन इट्स लोकेशन ऑन द कंसोल, टर्मिनल पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे कहीं पे भी ये फोल्डर लोकेशन ओपन करो, एंड फर्स्ट वी विल क्रिएट अ पैकेज जेसन फाइल. तो कैसे क्रिएट करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट अ कमांड npm init, ठीक है. तो यहाँ पे npm init लिखो, एंड इसका देखना है क्या बोलेगा. तो यू कैन सी दिस यूटिलिटी विल वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ package.json फाइल, ओके. तो इसमें आपको कुछ इनपुट्स देना है, सो बेस्ड ऑन दैट इट विल जनरेट अ package.json फाइल. तो अब देखो ये इनपुट मांग रहा है पैकेज नेम, ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो डिफॉल्ट वैल्यू है. अगर आप अपनी वैल्यू इनपुट नहीं दोगे सो इट विल कंसीडर द सेम नेम, ओके, जो डिफॉल्ट सजेशन में आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू, मैं अपने खुद का नाम दे देता हूँ. लेट्स से अगर मैं खुद का नाम नहीं दूंगा प्रोजेक्ट का, पैकेज का, तो जो डिफॉल्ट नेम था फोल्डर का ये उसे ही कंसीडर करेगा, राइट. सो लेट्स गो विद दिस डिफॉल्ट नेम. अगर आपको देना है खुद का नाम तो यू कैन टाइप योर ओन वैल्यू, ओके. नाउ हिट एंटर. Now it is asking for the version. So let's say I'm working on the version 0.1.0. Okay. Now we can add a description. For example, dummy node server. Now it is asking for the entry point. Entry point means what? देखो हर एक प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. जैसे अगर जावा की बात करें तो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन होता है? आपके प्रोग्राम का मेन मेथड, राइट. तो उसी सेम वे में यहाँ पे भी जब भी आप अपने खुद का नोड एप्लीकेशन बनाओगे तो आपकी प्रोग्राम का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा. वो स्टार्टिंग पॉइंट जनरली कौन सा होता है? जो प्रोग्राम आपके सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप सर्वर को लिसन कर रहे हो, जहाँ पे आप सर्वर को बना रहे हो, सो वो कंसीडर होता है एज एन एंट्री पॉइंट, क्योंकि वहीं से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, है ना. तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक ऐसी फाइल जिसमें आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है, सर्वर को लिसन करना आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उस फाइल को नाम दिया जाना चाहिए index.js. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, नॉट कंपल्सरी,
बट सभी इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं कि whenever there is an entry point in your JavaScript or in your Node application, तो उस फाइल को we should name as index.js. So if you are going to follow the naming convention, then आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आप पूरे प्रोग्राम में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पूरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. Otherwise you can give like start.js or myfile.js, demo.js. It's up to you. Okay, but it is always recommended to name that file as index.js, which will be considered as the entry point, right? और entry point generally किस फाइल को consider करवाएंगे हम? एक ऐसी फाइल जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जिसमें जनरली आपने सर्वर वगैरह को स्टार्ट किया होगा, राइट? उस फाइल को हम लोग नाम देंगे व्हाट? index.js. ठीक है, तो अभी हमारे पास फाइल नहीं है, हम वो क्रिएट कर देंगे और फिर वही फाइल आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. ठीक है, तो एंट्री पॉइंट का नाम फिलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विद सेम index.js. टेस्ट कमांड अभी स्किप करो. गिट रिपोजिटरी भी आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको गिट के बारे में एक्सपीरियंस है. सो आर यू गाइस फेमिलियर विद गिट? Yes, sir. तो आपको कौन से गिट रेपोजिटरी में प्रोजेक्ट को रखना है, आप उसका यूआरएल भी यहाँ पे दे सकते हो, ताकि किसी भी डेवलपर को चाहिए होगा तो सीधा पैकेज जेसन फाइल खोलेगा और वहां पे उसको गिट रिपोजिटरी मिल जाएगी कि कौन से रिपोजिटरी में आपका एक कोड रखा हुआ है. ठीक है, एंड कुछ कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो इफ यू वांट टू हैव सम सर्च कीवर्ड्स आल्सो. ओके, एंड ऑथर यू कैन आल्सो डिफाइन हियर. फॉर एग्जांपल, let me write author as for example Abhishek. And if you are having certain licensing तो आप licensing दे सकते हो, नहीं है तो खाली कर दो, skip कर दो. Okay, तो you can see about to write this in this particular folder location, ये फाइल बना के देगा और उसके अंदर कुछ इस टाइप का कंटेंट ये प्लेस करेगा. ठीक है, और ये पूछ रहा है इज दिस ओके, अब प्रोसीड करना चाहते हो तो यस कर दो. ठीक है, देन यू कैन सी वी हैव एंटर्ड yes. और अगर देखोगे तो यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है package.json. ठीक है, नाउ इफ यू विल ओपन दिस फाइल, अगर इस फाइल को देखोगे तो इसमें क्या कंटेंट आपको मिला है. यू कैन सी हमें प्रोजेक्ट का नेम मिला है, वर्जन वी आर गोइंग टू हैव, डिस्क्रिप्शन है, मेन फाइल index.js है जो कि एंट्री पॉइंट कंसीडर होगा. देन वी आर हैविंग सर्टेन स्क्रिप्ट, अभी इसको स्किप करो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे. देन ऑथर है, देन लाइसेंस है. ओके, एंड whenever you are going to install any dependency, अब अगर इसमें आप कोई डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करोगे, so that dependency name will be contained inside that package.json file. तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट वही फोल्डर ओपन करता हूँ यहाँ पे, नोड फर्स्ट नोड ऐप जो था. ओके, इन दिस वे. ठीक है, अगर आपको कोई डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है ना, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि पैकेज जेसन में डिपेंडेंसी को हमें क्यों इंस्टॉल क्यों मेंशन करना होता है. तो इसके बारे में एक पॉइंट ये समझना कि अगर सपोज अब मैं कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल npm install express, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली एक फोल्डर क्रिएट करेगा नोड मॉड्यूल्स, उसमें सारे आपके डिपेंडेंसीज को स्टोर करेगा एंड फिर एक और फाइल जनरेट करके दिया है दैट इज package.lock.json. अभी फिलहाल यहाँ पे एक चीज चेक करना, package.json में एक नई चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, दैट इज योर डिपेंडेंसीज की. एक नया ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है डिपेंडेंसीज का. ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से समझो. ठीक है, देखो होता क्या है, रियल टाइम एप्लीकेशंस में ना हम बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को या डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो प्रोजेक्ट की साइज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. राइट, यू कैन सी, अगर मैं इसी का आपको एग्जांपल दूं, अभी तक हमने खुद का कुछ भी कोड नहीं लिखा है, राइट? और अगर हम खुद का कुछ कोड लिखेंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा इट विल टेक अराउंड 1 KB 2 KB और अप टू लाइक 5 और 10 KB एट मोस्ट. ठीक है, उससे ज्यादा का कोड आपका नहीं जाने वाला. ठीक है,
But if you will look at the size of node modules, you can see roughly around 2 MB. आप देख रहे हो केवल एक डिपेंडेंसी की साइज यहाँ पे हम अराउंड 2 MB की है, ठीक है। तो जब एक रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप होता है ना, तो होता क्या है, हमारे कोड की साइज जनरली हार्डली 200 KB 300 KB के आसपास होती है, अगर बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है तो। But this node modules is having a size, let's say 400 MB या sometimes 250 MB 500 MB। तो ये इतना बड़ा ये फोल्डर बन जाता है node modules। Okay, let me put one point over here, like in real time cases, in real time applications, the node modules is way too large। ये बहुत large हो जाता है, like for example hundreds of MBs। ये hundreds of MB की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड our code will take around let's say अगर बहुत सारी सर्विसेज है, बहुत सारा कोड अगर लिखा है, तो फिर भी वो 100 KB या 200 KB मैक्स टू मैक्स, मतलब उसकी साइज केबीज में ही रहती है जनरली। कितना भी बड़ा आप एप्लीकेशन बना लो, वो MB में बहुत रेयरली जाता है। ओके, सो इन रियल टाइम एप्लीकेशंस ऐसा देखने को मिलेगा कि योर नोड मॉड्यूल is way too large, hundreds of MBs are there। For example, you are going to have, let's say 500 MB of size, okay, और thousands of folders बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि 2 MB में सिर्फ आपको यहाँ पे एक फाइल मिल रही है। एक चीज यहाँ पे देखो, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फोल्डर्स, ओके, और हर एक फोल्डर में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फाइल्स है। तो इन सभी फाइल्स की साइज को मिला के ये 2 MB की साइज बना रहा है, राइट। तो रियल टाइम केसेस में आपके पास ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स होंगे, ठीक है। रफली अगर मैं बताऊं तो जिस प्रोजेक्ट पे करंटली मैं काम कर रहा हूं अभी, so we are having around 40,000 files inside this node modules folder, ठीक है। और उस फोल्डर की साइज रफली अराउंड 500 to 600 MB आराम से होगी, ओके। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसकी क्या यहाँ पे रेलेवेंस है। अब देखो, इतना सभी को समझ में आया कि यहाँ पे साइज का क्या हिसाब किताब रहने वाला है। यस, Yes. Yes. ओके। सर अब मैं ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो, हो सकता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे माइग्रेट करना पड़े, राइट। देयर मे बी ए रिक्वायरमेंट टू माइग्रेट इट, या सपोज मुझे प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सिस्टम पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे प्रोजेक्ट के फोल्डर को कॉपी कर लूं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के फोल्डर को कॉपी करेंगे एंड किसी भी मीडियम में, लाइक आई एम हैविंग वन पेन ड्राइव, तो उस पेन ड्राइव में मैंने इसको पेस्ट किया, या दूसरे हार्ड ड्राइव में मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स भी कॉपी होगा साथ में। अब नोड मॉड्यूल्स में जरा बताओ, आपने कभी ये चीज नोटिस किया होगा, अगर आपके पास कोई मूवी है, राइट, इफ दैट मूवी वीडियो फाइल इज हैविंग लाइक साइज ऑफ 1 GB की भी मूवी क्यों ना हो, तो अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई 500 MB का फोल्डर है और वो एक ही फाइल 500 MB की नहीं है, राइट, यू आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स, लाइक कोई 1 KB की फाइल है, कोई 1 MB की फाइल है, राइट, वन फाइल इज हैविंग 500 KB। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स मिला के अगर 500 MB हो रहा है, तो बताओ किसको कॉपी करने में ज्यादा टाइम लगेगा। 500 MB। File ones. यस, 500 MB। आपने खुद ने भी कभी नोटिस किया होगा कि एक फोल्डर है थाउजेंड्स ऑफ फाइल जिसमें है, आप अगर पूरे फोल्डर को उठा के कॉपी करोगे, सो एक एक फाइल कब तक आप कॉपी करते रहोगे, राइट। तो एक एक फाइल कॉपी होने में ज्यादा टाइम लेगी, ऑल्दो पूरा फोल्डर आपने एक साथ उठाया है, लेकिन कॉपी तो एक एक फाइल होगी, पेस्ट एक एक फाइल होगी, सो इट विल टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि जनरली अगर इस प्रोजेक्ट को कल को माइग्रेट करना पड़ा, सो वी विल नॉट कैरी नोड मॉड्यूल्स विद अस, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे तुम लोगों को भी देना होगा ना, सो आई विल नॉट गिव नोड मॉड्यूल्स, मैं तुमको नोड मॉड्यूल्स नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत बल्कि है
और एक एक फाइल कॉपी होने में बहुत टाइम लगाएगा ये। ओके, सो आई विल नॉट गिव दिस नोड मॉड्यूल्स। तो इस नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के बाकी सारी फाइल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मेरी इंडेक्स फाइल भी होगी, पैकेज डॉट जेसन फाइल भी होगी, पूरा एप्लीकेशन का कोड होगा, बस नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के, क्योंकि ये बहुत बल्कि है, हम इसको मूव नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ सपोज करो मैंने प्रोजेक्ट आपको दे दिया, उसमें नोड मॉड्यूल्स नहीं है, बट अब हमें नोड मॉड्यूल तो चाहिए ना प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। यस और नो, डू वी नीड दैट और नॉट? यस Yes, yes, अब क्या करेंगे बताओ? एनी आइडिया कि अब क्या कर सकते हैं? नोड मॉड्यूल तो है नहीं अब आपके पास, पूरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। package.json में है ना डिपेंडेंसीज, सो एग्जैक्टली, वो रेफर कर सकते हैं। पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज है, तो वहां से डिपेंडेंसी को देखो और इंस्टॉल करो। ठीक है, एक पहला तरीका तो ये हुआ। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम से तो बच गए कि डिपेंडेंसीज का जो पूरा बड़ा फोल्डर था नोड मॉड्यूल्स का, वी हैवंट कॉपीड दिस फोल्डर, क्योंकि इसको मूव करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो कोई इसको मूव नहीं करता। ठीक है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? तो फिर पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा विदाउट नोड मॉड्यूल्स, एंड यू विल ओपन पैकेज डॉट जेसन फाइल, एंड यू कैन सी लिस्ट ऑफ द डिपेंडेंसीज, और एक एक करके फिर आप डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करोगे, लाइक npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और npm इंस्टॉल रिएक्ट, जो भी आपके डिपेंडेंसी का नाम है, आप उसे फिर इंस्टॉल करोगे। बट अगेन व्हाट विल हैपन कि अगर हमारे पास लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, अगर हंड्रेड्स ऑफ डिपेंडेंसीज होंगी तो उस केस में तो फिर मुश्किल होगा कि एक एक डिपेंडेंसी का नाम लिख के कब तक आप इंस्टॉल करने बैठोगे। ओके, सो व्हाट वी यूज टू डू इज, जब भी आप ये फोल्डर किसी को दोगे, फॉर एग्जांपल ये सारी फाइल्स विद सोर्स कोड मैंने किसी को दिया, और एक नया फोल्डर मैं बना रहा हूँ, सपोज करो कि ये मेरा वो कॉपीड फोल्डर है जो कि मैं लेके आया हूँ विदाउट नोड मॉड्यूल्स, लेट्स से माय प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड इसके अंदर वी आर हैविंग दीज टू फाइल्स, मेरा पूरा सोर्स कोड इसके अंदर भी है। ठीक है, मेरे सारे जावास्क्रिप्ट के फाइल, सारे स्टार्टिंग फाइल, सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है, बट क्या नहीं है? नोड मॉड्यूल्स नहीं है। बट व्हाट आई एम हैविंग कि मेरे सारे डिपेंडेंसीज के नाम इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेंशन्ड है, तो मैं उसका यहाँ पे बेनिफिट लूंगा। आई विल ओपन टर्मिनल इन दिस लोकेशन, और अब एक एक डिपेंडेंसी का नाम देख के इंस्टॉल मत करो, ऐसा मत करो पैकेज डॉट जेसन फाइल आपने ओपन किया, एक डिपेंडेंसी का नाम देख रहे हो, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस फिर इंस्टॉल कर रहे हो, नहीं, ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा। आप सिर्फ इतना करो npm इंस्टॉल, दैट्स इट। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी का नाम मत लिखो। तो अब ये पता है क्या करेगा? npm install command will go into package.json फाइल, और ये देखेगा कि डिपेंडेंसीज में कौन कौन से मॉड्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, एंड इट विल इंस्टॉल ऑल दी मेंशन डिपेंडेंसीज। तो ये सारी मेंशन जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी ना, उनको इंस्टॉल कर देगा। लेट मी शो यू अ डेमो। मैंने npm इंस्टॉल लिखा, ठीक है, और ये जाएगा पैकेज डॉट जेसन में, सारी डिपेंडेंसीज को देखेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। तो इसने देखा कि करंटली एक ही डिपेंडेंसी थी एक्सप्रेस पैकेज डॉट जेसन में, तो उसने उस डिपेंडेंसी को यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समझ में आया सभी को क्या किया मैंने? यस सर। Yes, sir. So this is the importance of having package.json file. So in real-time application, node modules is way too large. Okay, let's say it will take around hundreds of MBs. So our code will take around 100 or 200 KB. So it is easy to move our code base as compared to the node modules. So this simply means what? At the time of project migration, yeah, suppose if I have, or when we have to upload our project onto git, okay, या जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड कर रहे हो, तो हम नोड मॉड्यूल्स को वहां पे मूव नहीं करने वाले ऑन टू गिट रिपोजिटरी।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोड मॉड्यूल्स को कभी भी मूव नहीं करेंगे. सो वी विल नॉट कैरी द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर. ओके, हम लोग नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को कैरी नहीं करने वाले. ओके, सो we will push all the remaining things other than the node modules. Node modules को छोड़ के सारी चीजों को आप पुश कर दो, either on the git repository or onto the other disk. ठीक है, किसी भी दूसरे डिस्क पे या किसी दूसरे रिपोजिटरी पे आप नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के बाकी सब कुछ रख दो. Now on to the new system, we will have entire project विदाउट नोड मॉड्यूल्स. ठीक है, तो दूसरे सिस्टम में आपके पास पूरा प्रोजेक्ट होगा विदाउट नोड मॉड्यूल्स, बट all the dependencies names has been there in package.json फाइल. ठीक है, सारी डिपेंडेंसीज के नाम कहाँ पे है, package.json फाइल के अंदर है ही. Now to install these dependencies, just write or just execute the following command. Okay, कौन सा कमांड हमें चलाना है कि दूसरे सिस्टम में सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएं. दैट कमांड इज npm install. दैट्स इट, यू आर डन विद इट. तो ये जाएगा package.json में डिपेंडेंसीज की लिस्ट को देखेगा, एंड जितने भी आपके पास में मॉड्यूल्स के नाम मेंशन्ड होंगे, इट इज गोइंग टू इंस्टॉल ऑल ऑफ देम. ठीक है, आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है, तो जब भी आप गिट पे अपना कोड पुश करोगे, सो नोड मॉड्यूल्स को पुश नहीं किया जाएगा, बाकी सारा कोड रखेंगे. एंड जैसे ही दूसरे सिस्टम में फिर उस कोड को क्लोन करेंगे, तो सारी चीजें आ जाएंगी, package.json भी आएगा, एंड अब npm इंस्टॉल चलाओगे तो ये आपके सारी मॉड्यूल्स को, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा. दैट्स इट. Okay, so that's the importance of having your dependencies list into package.json. अब जरा सोचो, अगर package.json में dependencies के नाम नहीं मेंशन किए होते तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती, राइट. फिर इसको कैसे हम लोग एड्रेस करते, फिर मैन्युअली एक एक नाम कहीं ना कहीं हमको मेंशन करना होता, फिर लिस्ट में से नाम देख के एक एक करके मैन्युअली हम लोग चीजों को इंस्टॉल कर रहे होते. ओके, सो जस्ट टू ईज आउट द माइग्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नाम इसलिए package.json में होने चाहिए. ओके, सो दैट्स द थिंग. एंड नाउ एक और फाइल अभी बची है, कौन सी, पैकेज log.json. देखो, ये जो पैकेज log.json फाइल है ना, इसको प्रैक्टिकली आपको खुद के लिए यूज नहीं करना है. ये फाइल इंटरनल यूज के लिए क्रिएट होती है. आपको इस फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट एनीथिंग इनसाइड दिस फाइल. इसमें कुछ भी एडिट मत करना, इसको भले ओपन भी मत करके देखना, इसको हाथ भी मत लगाना. जस्ट डोंट टच दिस फाइल. बट मेन पर्पस क्या है इस फाइल का, देखो, पैकेज जेसन में हमारे पास मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं. ठीक है, एंड नोड मॉड्यूल्स के अंदर प्रैक्टिकली उनके फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, right. Package JSON is only containing name of these dependencies, and practically all the folder and files are being stored into the node modules. ठीक है, तो ये जो package log.json फाइल है, it is going to have a linking of which dependency is having what kind of files and folders in the node modules, right. तो किस installed dependency के लिए नोड मॉड्यूल्स में कौन कौन से फोल्डर्स एंड फाइल्स है, सो दैट लिंकिंग इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड दिस पैकेज log.json. ठीक है, वो चीज होगी पैकेज log.json के अंदर. तो इसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट बने होंगे, इसको कभी हाथ मत लगाना, इसको कभी एडिट मत करना, वैसे तो कर नहीं पाओगे क्योंकि log.json जिसका यही मतलब है कि फाइल लॉग्ड है,
आप इसमें कुछ भी अपडेट्स मत करना, ठीक है। सो दिस फाइल contains linking of module name, the dependency name with the folder and file name in node modules. तो हमें पता है जैसे हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो एक्सप्रेस के लिए सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स कहाँ पे जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स में, और उस डिपेंडेंसी का नाम कहाँ पे रखा हुआ है, हमारे पैकेज जेसन में। तो पैकेज जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसीज के नाम लिखे हुए हैं, राइट, तो उनके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से फोल्डर्स एंड फाइल्स बने हुए हैं नोड मॉड्यूल्स में, तो उसकी लिंकिंग होती है यहाँ पे पैकेज लॉग डॉट जेसन में। ओके, सो बट द थिंग इज यू डोंट नीड टू ओपन दिस फाइल, यू डोंट नीड टू टच दिस फाइल, ये इसके इंटरनल यूज के लिए है, आप इस फाइल को यूज नहीं करने वाले हम लोग सिर्फ, और इवन आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी जाके कुछ चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। वी ओनली नीड टू डील विद दिस पैकेज डॉट जेसन फाइल, ठीक है। तो ये था हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल और थर्ड पार्टी मॉड्यूल, and now we are left with two things, types of third party module. तो दो टाइप के थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर इवनिंग सेशन। लाइक वन इज द लोकल मॉड्यूल एंड अनदर इज द ग्लोबल मॉड्यूल, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन। तो इवनिंग वाले सेशन से पहले ये चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना, ये चीज़ों को एक बार इंस्टॉल वगैरह करके देख लेना, क्योंकि हम इवनिंग सेशन में इन सब चीज़ों के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्रेस ऑल्सो, ठीक है। हम एक्सप्रेस को स्टार्ट करने वाले इन आवर इवनिंग सेशन, ठीक है। नाउ इफ यू गाइस आर हैविंग सर्टेन क्वेरी देन यू कैन आस्क। आज हालत टाइट लग रही है तुम लोगों की। एग्जाम है सर। एग्जाम है सर। एग्जाम है, ओके। किस टाइप का एग्जाम है वो, क्या एग्जाम में? फिर डोम मैनिपुलेशन रिलेटेड 1 पॉइंट ओके, हाफ आवर्स में वेब डिजाइन करनी है। तो क्या मतलब प्रैक्टिकल, मतलब कोई लैब वगैरह है या फिर एमसीक्यूज टाइप है? सर दोनों लैब है। एग्जाम दोनों है सर। दोनों पे है। अच्छा, तो इसलिए डरे हुए हो सभी। ग्रेट। तो इसमें डरने वाला क्या है, आता तो है ना सब कुछ। वो तो पता चलेगा सब। देखो, जितना हमने क्लास में देखा है, सेशन में जो हमने डिस्कस किया था, अगर उतना प्रैक्टिस किया है ना तुम लोगों ने तो इजीली कर पाओगे। एटलीस्ट अगर उतना भी प्रैक्टिस किया है तो। किया है कि नहीं उतना प्रैक्टिस तुमने? यस सर। ठीक है, तो टास्क तो वही देंगे ना आपको, सर ही देंगे टास्क, तो क्या करना है? यस सर। सर के आगे खौफ है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा यार, हमेशा ये सोच के टाल दिया करो। चलो, ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स वाइंड दिस सेशन। प्रॉमिस किया है सर ने टास्क देंगे। प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लेना, फिर रिजेक्ट मत करना। अरे कुछ भी नहीं है यार, इजी है। बस उसको ये सोचने की कोशिश करना है कि टास्क में एग्जैक्टली करना क्या है, राइट, कि एलिमेंट को ऐड करना है, रिमूव करना है, वो सब आप जानते ही हो, और इसके अलावा और है ही क्या, कुछ भी नहीं है। चलो एनीवेज, लेट्स मीट इन इवनिंग सेशन। चलो गाइस, थैंक यू थैंक यू ऑल। सर।